Department of Commerce and Business Management of Integral University welcomes you all in the in this online course on goods and service tax. This is an online course of 45 days and all the lectures will be conducted on the weekends on Saturdays between 2 and 3 p.m. and Sunday between 2 to 4 p.m. Today it is the introductory session of the course and the session will be taken by Mr. Amit Kumar Goel. You all are requested to post your queries, questions in the chat box and also to keep your microphones and cameras off during the session. Now I would like to invite Sir to continue the session. Thank you, Nazia, for giving me this opportunity. And this is first of all, I would like to thank Dr. Shahid Mazhar, the head of department, for taking this wonderful initiative for especially for the students of BCom, BBA, and MCom to learn more about the GST, as this is a very hot and burning topic right now. And in the present scenario, when the things are keeps on changing and the tax regimes which is not uniformity, it becomes very difficult for everybody to understand the GST. So I first of all I would like to congratulate Dr. Shahid Mazhar for taking this initiative and starting such a wonderful course and event in our department. Before starting the session, I would like to motivate all the students to encourage your colleagues and other students to participate in this event more and more, because this is a very useful course of 45 days in which you don't have to pay anything and you have to learn more and more. So before wasting too much time on such things, I would like to start my presentation. This is a very short and overview of GST. What is GST? Why we required the GST, and so far so on. If Nadia, I would like to correct you here. Just turn off the microphone. If the students want to turn on their camera, they are free to turn on their camera. Okay. So I will start with my presentation. Is my presentation visible to all of you? Yes, sir, it is visible. Okay. So one student, or if Nadia is possible, then turn off the microphone so that I can communicate with all the students. And if any problem arises, then they will tell me and assist me whether it is working or not. Okay. So we will start with GST. If we are known as want to know about what is GST, then GST is a goods and service tax. A very simple definition of GST. Before going the definition of the GST, we will first I would first like to introduce the history of GST, how the GST came into an existence. एकदम से जीएसटी दिमाग में आया कैसे, जीएसटी है क्या, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो दिस इज द फुटप्रिंट ऑफ और द बैकग्राउंड ऑफ द जीएसटी. In the year 2000, our late former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee ji set up a committee to draft the GST law. In the year 2004, a task force constituted. A task force is constituted. A task force is constituted for a GST framework. In the year 2006, the finance minister proposes the GST introduction from 1st April 2010. And in the year 2011, the Constitution Amendment Bill to enable the GST law introduction. Then in the year 2010, in the year 2007, the CST to be phased out, rate reduces from 4% to 3%. Then EC finalized the new GST structure to be set up, levied, and legislation. In the year 2010, the project to be computation commercial tax launched between the GST implementers postponed. And in the year 2011, the Constitution Amendment Bill to enable the GST introduction. In the year 2012,
Standing committee begins the discussion on GST for the studying it over the clause 279B. What is 279B? This will be later discussed in the later classes by one of the faculty members of your department. In the 2013, Standing Committee tabled its report on the GST. In the year 2014, GST bill reintroduced in the parliament by the finance minister. In the 2015, GST bill was passed in the Lok Sabha but not passed in the Rajya Sabha. In the year 2016, GSTN goes live. Amendment model GST law passed in both the houses. President given assessment. In the year 2017, 4 subsidiary GST bills passed in the Lok Sabha and approved by the cabinet. And in the year 2017, 1st July, Rajya Sabha passes 4th supplementary GST bill, finalized the GST implementation, and GST was implemented on 1st July 2017. And since 2017 till date, there are many amendments took place in the GST structure. We will discuss in our presentation what is the present tax slab or what is the present GST structure. We will discuss in the later presentations. But today we are learning, or we are using the refined form of GST which was implemented in the country in the 2017. If we are talking about the pre-GST tax structure in India, this is the tax structure of India. The Indian tax structure is divided into two parts: the direct taxation and the indirect taxation. The direct taxation is further classified into two parts: the income tax and the wealth tax. And the indirect tax is divided into two parts: the central tax and the state tax. Central tax divided into three parts: excise duty, service tax, and custom tax. Whereas state tax is divided into two parts: the VAT, the entry tax, the luxury tax, lottery tax, etc. This is a tax structure which is followed before the implementation of the GST in India. Before the goods and services tax introduction, buyers buy the raw material, pay the GST, pay the VAT, and goes to the manufacturer. Manufacturer pays the VAT plus GST and passes to the sales to the wholesaler and the warehouse. So from the warehouse to the seller to the retailer, the VAT has again paid, and from the retailer to the final customer, the VAT again paid. So if we see that from raw material to the finished good, 4 times the VAT has to be paid by the person. And finally, when the goods reaches to the customer, or the services finally reaches to the customer, the amount, the product which is beginning from the raw material at 10 rupees reaches to the final customer at 100 rupees. A very basic question from all of you is, from my side, is whether the payment of VAT on the various level of the supply chain, does the quality or the quantity of the product increases? मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने 4 स्टेज में वेट पे किया फ्रॉम द रॉ मटेरियल टिल फिनिश गुड तक पहुंचने तक, क्या इन 4 टैक्स को पे करने से हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी पे कोई फर्क पड़ा? नो सर. बट वी आर बाउंड टू पे द टैक्स. जो सामान हमारा 10 रुपए का बन के निकल रहा था, वो फाइनली पहुंचते पहुंचते 100 रुपए का हो गया. क्यों? Why is it so? And the reason behind this is because we have paid the VAT on various levels, and this ultimately increases the prices of the goods and services. And this is before the implementation of the GST in India. What is GST? Now, actual topic comes, what is GST? GST is known as Goods and Services Tax. It is an indirect tax which is replaced many indirect tax in India, such as excise duty, VAT, service tax, etc.
The Goods and Services Tax Act was passed in the Parliament on 29 March 2017 and came into effect on 1st July 2017. In other words, goods and services tax is levied on the supply of goods and services. The goods and service tax law in India is comprehensive, multi-stage, discrimination-based taxes. Tax is levied on the value addition, and GST is a single domestic indirect tax law for the entire country. So if we not make it in a short form or in a nutshell, one tax for manufacturer, trader, and services. That's why our present Prime Minister Shri Manmohan Singh has given this tax as a one nation, one tax slogan. So now the VAT is GST is implemented throughout the nation as one tax, one nation policy. How the GST is levied on the multi-stages, we see from the diagram, we can see that if we buy a flour and sugar, the value added, and we will make a biscuit. Again, on a biscuit, we have made the value addition and we have given a brand or we have given a labeling like ABCD, any company name, or ITC, Ashirwad, XYZ, any name. Then there is again a value addition on the biscuit. And when the packages and the company branding is done, again it went to the become a final product which a customer can buy from the market, from the wholesaler, from the retailer, or from any level of the supply chain. The value is added. So where at the level of the value addition, we have to pay the tax, and the previous person who has paid the tax on the value addition can get the rebate on the tax paid by him. We will later discuss how we will do this thing. If we are talking about the advantages of GST, the GST mainly removed the cascading effect on the sales of goods and services. Removal of cascading effect has implemented the cost of goods. Since the GST regime eliminated the tax on tax, the cost of goods decreases. That is a very important thing, because here now the double taxation or the tax on tax system will be removed. You have to pay the tax only on the value which you have added on the product and services only. All the GST is mainly technological driven. All the activities like registration, return filing, application for the refund, and the response to the notice need to be done online on the GST portal, which accelerate the processes. In the later part of the presentation, I will show you how to register for the GST and how to file the GST return. If we see from the diagram, the GST, the benefits of the GST are removing the cascading effects of tax, high threshold of the GST registration, composition scheme for the small businesses, simpler online facility for the GST compliances, relatively less compliances under GST, definite treatment for the e-tax, e-commerce activities, increase efficiency in logistics, and regularize the unorganized sector. This is a very important thing which GST has covered, that it regulating the unorganized market. What is unorganized market? If you are talking about the unorganized market, you will find that there are many grocery shops or many shops in your locality. When you go and buy a product or a grocery from there, they are not ready to give you the receipt for that. And you will buy the product, you will give the money and come back to home. But the grocery shop owner or the vendor has charged the tax from you, but they have not deposited the tax which is charged from you to the government of India. And what they have done, that amount, they will treat that amount and convert it into their black money. Now that there is a change in the scenario. आपके मोहल्ले में या आपके किसी भी लोकेलिटी में जो भी वेंडर की या ग्रोसरी की शॉप है, आज की तारीख में आप देखते होंगे कि आप उनके सामान लेने जाते हैं और वो आपको कंप्यूटराइज्ड इनवॉइस देते हैं. क्यों?
क्योंकि इस तरीके से उन्होंने जितने भी वेंडर थे, जितने भी शॉपकीपर थे, जितने भी ग्रोसरी स्टोर थे, उन सब को कंट्रोल कर दिया कि अब आप अपनी शॉप पर विदाउट इनवॉइसिंग कोई भी सामान नहीं बेच सकते हैं। इससे क्या हुआ, इसका दूसरा इफेक्ट क्या आया कि जितने अनऑर्गेनाइज्ड शॉप्स या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स की दुकानें थी, वो सबको मैंडेटरी हो गया कि वो अपने आप को अब जीएसटी में रजिस्टर कराएंगे। एक बहुत बड़ा मिथ आता है, मैं इस पॉइंट पर यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को कि सब लोग कहते हैं कि जीएसटी एक मैंडेटरी है, जीएसटी कराने से हमको टैक्सेबल लायबिलिटी आ जाएगी, हर महीने का अकाउंट रखना पड़ेगा एंड सो फॉर सो ऑन, बहुत ब्ला ब्ला बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं। इट इज वेरी क्लियर दैट अगर जीएसटी की बात की जाए और आप टैक्सेबल लायबिलिटी के अंदर नहीं आ रहे हैं, आप 20 लाख का टर्नओवर नहीं कर रहे हैं, देन देयर इज नो नीड टू पे एनी टैक्स। बस आपको हर महीने की 22 से 25 तारीख के बीच में अपने पिछले महीने का जीएसटी रिटर्न फाइल करना होगा, वो भी निल के साथ। इट हार्डली टेक्स a second or 1 minute to file a nil GST return। आप लोगों को मेरे ख्याल से व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने में इससे ज्यादा टाइम लग जाएगा जितना आपको निल का रिटर्न जीएसटी फाइल करने का टाइम नहीं लगेगा। सो देयर आर सो मैनी मिथ्स, सो मैनी प्रॉब्लम्स विच लोगों ने जीएसटी को इंप्लीमेंट नहीं करना चाहा। रीजन ये था कि वो पैरेलल बहुत सारी सब्सिडरी कंपनी चलाते थे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अपने आप को वर्क करते थे, जिसकी वजह से अब जब से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ उनके लिए मैंडेटरी हो गया कि वो अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर्ड कराएं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द जीएसटी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जीएसटी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जीएसटी के 3 कंपोनेंट्स हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। अगर हम सीजीएसटी की बात करें, इट इज अ टैक्स कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंटर स्टेट सेल। एग्जाम्पल, अगर हम बात करें अ ट्रांजेक्शन हैपन विद इन महाराष्ट्र, तो वहां पर सीएसटी लगेगा। अगर एसजीएसटी की बात करें तो इट इज अ टैक्स कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द इंट्रा स्टेट सेल। एग्जाम्पल, द ट्रांजेक्शन हैपन विद इन महाराष्ट्र। आईजीएसटी की बात करें, इट इज अ टैक्स कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एन इंटर स्टेट सेल, लाइक महाराष्ट्र से तमिलनाडु, यूपी से महाराष्ट्र, यूपी से दिल्ली, दिल्ली से यूपी, तो यहां पर लगेगा आईजीएसटी। In most cases, the tax structure under new regime will be as follows: state sale within the state, तो वहां पर क्या लगेगा, वहां पर लगेगा आपका सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स प्लस स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओल्ड रिजिम में क्या लगता था, वैट प्लस सेंट्रल एक्साइज टैक्स एंड सर्विस टैक्स। उससे रेवेन्यू विल बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर। अगर हम सेल कर रहे हैं आउटसाइड द स्टेट तो वहां पे क्या लगेगा, वहां पे लगेगा आईजीएसटी। पहले क्या लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था, एक्साइज टैक्स लगता था या सर्विस टैक्स लगता था। इसमें क्या होगा, अगर हम रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, देयर विल बी ओनली वन टाइप ऑफ टैक्स, सेंट्रल। इन केस ऑफ इंटरस्टेट सेल, द सेंट्रल गवर्नमेंट they will share IGST revenue based on the determination of the good। अभी हम बात करते हैं कैसे। अगर हम यहां पर देखें तो टैक्स स्लैब दिया हुआ है जीएसटी का 5%, 12%, 18% और 28%। अगर हम बात करें तो ये टोटल जीएसटी है जो किसी प्रोडक्ट पे लगता है, 5% लगेगा। तो सीएसटी और जीएसटी में कितना, सीजीएसटी और एसजीएसटी में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2.5%, 2.5%। 12% है तो 6% होगा, 18% है तो दोनों में 9% डिस्ट्रीब्यूट होगा, और 28% है तो वहां पर 14% डिस्ट्रीब्यूट होगा। पॉपुलर गुड्स कौन से हैं जिन पे 5% लगता है, फ्रोजन वेजिटेबल्स, फर्टिलाइजर, स्पाइसेस, प्लास्टिक वेस्ट।
12% और पॉपुलर सर्विसेज कौन सी होंगी? न्यूज़पेपर प्रिंटिंग, टेक अवे फूड एंड रेस्टोरेंट्स। 12% किस पे लगेगा? घी, नट्स, फ्रूट्स, हैंड बैगेज एंड सर्विसेज किस पे लगेगा? टेम्परी बेस्ड आईपी राइट्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फॉर सेल। 18% किस पे लगेगा? वॉशिंग मशीन, कैमरा, शैम्पू। और सर्विसेज कौन सी होंगी? आउटडोर कैटरिंग, आईटी सर्विसेज एंड टेलीकॉम सर्विसेज। 28% किस पे लगेगा? सनस्क्रीन, मोटरसाइकिल, पान मसाला एंड अदर प्रोडक्ट्स। और पॉपुलर सर्विसेज कौन सी होंगी? सिनेमा, फूड्स, ड्रिंक्स, स्टे एट एसी 5 स्टार होटल। बेनिफिट्स की बात करें तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं? डिक्रीज इन इन्फ्लेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डिक्रीज इन द ब्लैक मनी ट्रांजेक्शन, reduction in the cascading of taxes, overall reduces in the prices, common national market, benefit to the small taxpayers, self-regular tax system, non-incentive electronic tax system. आगे देखें, more informed customers, poor status to gain and make in India, simplifying tax regime, reduction of multiplicity of taxes, consumption based tax and absorption of CST, export to be zero rate and protect of the domestic industry IGST. अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो प्रेजेंट जीएसटी के अंदर क्या था? हमारा सेंट्रल एक्साइज ऑन मैन्युफैक्चर, सर्विस टैक्स प्रोवाइडेड बाय द सर्विसेज, और होता क्या था उसके बाद लगता था वैट ऑन द सेल ऑफ गुड। दूसरा क्या था? गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में डिलेमा था कि हम किसको गुड्स मानेंगे और किसको सर्विसेज मानेंगे, कौन सी सर्विसेज के कैटेगरी के अंदर आएगी, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में आएगी। और उससे होता क्या था कि एक बायर जो था वो कंफ्यूज हो जाता था कि हमने सर्विसेज बाय करी हैं कि हमने गुड्स बाय किया है। तीसरी प्रॉब्लम जो आती थी वो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन आता था, हमें काफी सारी चीजों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। सेंट्रल एक्साइज के लिए कराना पड़ता था, लग्जरी टैक्स के लिए कराना पड़ता था, एंटरटेनमेंट टैक्स के लिए कराना पड़ता था, वैट के लिए कराना पड़ता था, और एक्साइज ड्यूटी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, और सर्विस टैक्स के लिए। अब क्या हुआ? ये सब चीज खत्म होके सिर्फ एक चीज बन गई, और जो कहलाता है आपका जीएसटी। तो यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होता है। मैं आई विल अनदर टेक 2 minutes टाइम। आई वांट टू शो यू वन इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम ये देखें तो ये है हमारी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन साइट, ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रजिस्ट्रेशन साइट, जिस पर आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या कोई भी बिजनेसमैन अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। एक दिन के अंदर आपको अपना जीएसटीएन रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाता है। कैसे होता है? आप इस पे जाएंगे तो यहाँ पर वो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। एप्लीकेशन टाइप किस तरीके की आपकी एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, जीएसटी में मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं, या जीएसटी को कैंसिल कराना चाहते हैं। उसके बाद आवेदक का नाम यानी कि एप्लीकेंट फुल नेम, फर्म का नाम, टाइप ऑफ एंटिटी किस तरीके की एंटिटी है, पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट दे रखी है। सोल प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एलएलपी, ओपीसी। ओपीसी का मतलब होता है 1% कंपनी। सोसाइटी है, ट्रस्ट है, या किसी और तरीके का आपका बिजनेस है तो वो अदर्स कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद कंप्लीट एड्रेस ऑफ द एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, आप एक प्लेस से ज्यादा किस जगह पे बिजनेस करें उसकी कोई डिटेल लेनी पड़ेगी। लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आप किस सर्विसेज में डील करते हैं वो बताना पड़ेगा। नेचर ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी, यहाँ पे बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज दे रखी हैं जिसमें आप डाल सकते हैं किससे आप रजिस्ट्रेशन कराना है। देन आपको एक ईमेल आईडी देना पड़ेगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस किस दिन से शुरू हुआ उसकी तारीख डालनी पड़ेगी। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस वही होगा जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में पड़ा हुआ होगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको एमसीआई देता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स तब देगी
जब आप अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन, एक मिनट, इस तरीके से कराएंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एलएलसी, एलएलपी एंड ओपीसी, इनमें से किसी का भी रजिस्ट्रेशन आप कराएंगे तो आपको एमसीए पे जाकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और जब वहां पर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको एमसीए की तरफ से एक सर्टिफिकेट आएगा जो कहलाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसमें जो डेट पड़ी होगी वही डेट होगी आपकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर, नेचर ऑफ बिजनेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी अपनी। देन उसके बाद डू यू वांट टू ऑप्ट कंपोजिट स्कीम, किस तरीके की स्कीम आप ऑप्ट करना चाहते हैं उसके बारे में आपको देना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा। जब आप सबमिट करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको इस पे फिल करना पड़ेगा और आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। वंस यू गेट द जीएसटी, अभी जैसे मैंने बताया हर महीने की 22 तारीख से 25 तारीख के बीच में आपको अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ता है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर जाकर आप अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे। ये स्लाइड विजिबल है, मेरी स्लाइड दिख रही है अली? Yes, sir. अगर हम इस स्लाइड को देखें या इस स्क्रीन को देखें तो यहाँ पर जाके आप अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे। जब आपका जीएसटी रजिस्टर्ड हो जाएगा तो आपकी रजिस्टर्ड मेल पे एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपका जीएसटी नंबर आ जाएगा एंड लॉगिन डिटेल आ जाएगी। उस लॉगिन डिटेल से जाके आप फर्स्ट टाइम यूजर होंगे तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा जिससे जाके आप अपना यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। एक मेरे कोई फ्रेंड है, उनका जीएसटी नंबर मुझे मालूम है तो उनके हिसाब से मैं तुम लोगों को लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि कैसे पेज खुलता है, क्या होता है, ताकि हम जीएसटी फाइल कैसे करेंगे इसको हम आगे के क्लासेस में डिस्कस करेंगे, आज नहीं बताऊंगा मैं। अगर हम ये देखें तो ये एक पेज है जिससे जाके आप कंपनी का पूरा नाम, कंपनी की सारी डिटेल्स आ जाएगी। इसी में जाएंगे जब आप सर्विसेज में, तो सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन आएगा, लेजर आएगा, रिटर्न आएगा, पेमेंट आएगा, यूसेज आएगा, कितना रिफंड हुआ, ई बिलिंग सिस्टम आ जाएगा, ट्रैक योर स्टेटस आ जाएगा। यहाँ पर आपका लॉज आ जाएंगे सारे, क्या क्या लॉज हैं इसके। डाउनलोड्स में जाएंगे तो डाउनलोड्स में आपका ऑफलाइन टूल्स आ जाएंगे एंड अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर आ जाएगा जो बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दे रखा है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी नहीं है और आप अलग से कोई टैक्स सिस्टम या टैक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज नहीं करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने फ्री में एक सॉफ्टवेयर दे रखा है, आप उस सॉफ्टवेयर को भी यूज कर सकते हैं। और इस तरीके से जब आप जाएंगे तो रिटर्न में जाके यहाँ पर रिटर्न में क्लिक करेंगे और रिटर्न में क्लिक करते ही वो आपसे पूछेगा कि आपको रिटर्न फाइल करना है। अपना रिटर्न फाइल करिए अपना यहाँ से और आपके मोबाइल पे एक ऑथेंटिसिटी ओटीपी आएगा, उसको आप डालेंगे और आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा। कैसे रिटर्न फाइल होता है इसको वी विल डिस्कस दिस थिंग डिटेल इन द अदर क्लासेस। एंड नाउ बैक टू द होस्ट। नाजिया, Yes, sir. session is over, now up to you. Okay, sir. So I've shared the link for attendance in the chat box. You all are requested to fill the attendance. Okay, sir.
किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है चैट बॉक्स पे, नाजिया मुझसे पूछ सकती हैं, या बाकी तुम सबके पास व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे भी तुम लोग अपने क्वेरीज पोस्ट कर सकते हो और मैं उससे भी आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा, कोई Yes. इश्यू नहीं है। If you have any question, please ask. आप लोगों के आगे के सेशंस जो हैं जीएसटी के ऊपर, वो डॉक्टर फरीना सरदार खान, देन उसके बाद आपके शारिक नदीम सर, देन नाजिया मैम और फरीन सिद्दीकी मैम आप लोगों के आगे के सेशंस लेंगी, जिसमें आप लोगों को मोर इनसाइड एंड मोर डिटेल्ड अबाउट द जीएसटी बताया जाएगा। मैंने सिर्फ आज आप लोगों को एक ओवरव्यू दिया है जीएसटी का, और इसके अलावा आप लोगों के रेगुलर क्विज एंड असाइनमेंट्स वगैरह सब होंगे। टाइम टेबल और जो टाइम स्लॉट्स होगा वो बहुत जल्दी आप लोगों को इसी व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो हम लोगों ने जीएसटी का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, इस पे शेयर कर दिया जाएगा। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कराया है, ऑलमोस्ट 90 स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन हो चुका है जीएसटी के ऊपर। आगे के फर्दर, आज का इंट्रोडक्शन सेशन था इसलिए आज को एक्सक्यूज करते हुए, आज के बाद जो नेक्स्ट सैटरडे का सेशन होगा और संडे का सेशन होगा, उसमें अगर किसी भी पार्टिसिपेंट्स की अटेंडेंस 90% से कम होगी तो उसको, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल माना जाएगा और उसको सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट से नहीं मिलेगा, और इसके लिए वो क्लेम या किसी प्रकार की क्वेरी ना मेरे से ना हेड ऑफ डिपार्टमेंट से करेगा। इसकी गाइडलाइंस आज ही आप लोगों को बहुत जल्दी नाजिया मैम भेज देंगी। अगर किसी को फर्दर कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकता है, बाद में ये ना कहे कि 45 लेक्चर कंप्लीट होने के बाद सर हमारा सर्टिफिकेट नहीं मिला है या मैं अटेंडेंस भरना भूल गया था। अटेंडेंस के लिए जो लिंक नाजिया मैम ने आप लोगों को शेयर किया है वो सिर्फ आधे घंटे के लिए खुला रहेगा। आधे घंटे बाद मैं नाजिया को बोल रहा हूं कि वो नाजिया बंद कर देगी, किसी के लिए ओपन नहीं करेगी। अगर मैं भी किसी के लिए रिक्वेस्ट करूंगा तो नाजिया उसको ओपन नहीं करेगी। तो प्लीज मेरे से या हेड ऑफ डिपार्टमेंट से इस चीज के लिए आप लोग रिक्वेस्ट ना करें कि सर मैं अटेंडेंस भरना भूल गया था या भूल गई थी। If you are sparing your valuable time, Saturday 1 hour and Sunday 2 hours, then be sincere, be attentive and try to learn something. क्योंकि जो स्पेशली अगर हम बात करें, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स बीकॉम के और एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं, कल के दिन जब आप लोग मार्केट में जाएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, डू यू नो हाउ टू फाइल अ जीएसटी रिटर्न, या जीएसटी होता क्या है। तब आप लोग सिर्फ एक जवाब आप लोगों के मुंह से निकलेगा, सर हमको पढ़ाया ही नहीं गया था कि जीएसटी होता क्या है। तो इसके पीछे, इस कोर्स को स्टार्ट करने के पीछे डिपार्टमेंट के बहुत एफर्ट्स हैं। इसको सिंसियरली लीजिए, सिंसियरली करिए, और ये आप ही लोगों को बेनिफिट देगा आगे जाके। आगे के सेशंस में हमने और आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने प्लान आउट कर रखा है कि हम लोग कुछ सेशंस कराएंगे जहां पर आप लोगों को डायरेक्ट इंटरेक्शन चार्टर्ड अकाउंटेंट से होगा, बट वो तब सेशन पॉसिबल होगा जब आप लोग इंश्योर करेंगे हमें कि क्लास में कम से कम 90% अटेंडेंस रहेगी। अगर इस तरीके की हालत रहे कि 28-29 बच्चे हैं तो हम भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को इनवाइट नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो किसी को नहीं है? ठीक। आज शाम को 5 बजे के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्लोज हो जाएगा।
आज तक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया, आज के बाद उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। वेट फॉर द सेकेंड बैच की सेकेंड बैच कब स्टार्ट होगा तब वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्लियर है? दैट्स ऑल। तो हम सेशन को एंड कर रहे हैं यहीं पर आज का। किसी को कोई क्वेरी नहीं है, किसी को कुछ नहीं पूछना है? नाजिया? No, sir. नाजिया डू वन, तुमने Yes. चैट बॉक्स में अटेंडेंस डाल दी है। अटेंडेंस Yes, का sir. लिंक एक बार तुम व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दो, क्योंकि जैसे ही हम बंद करेंगे लिंक खत्म हो जाएगा, तो उसको तुम व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दो। और Okay, sir. ठीक आधे घंटे बाद यानी कि 3:15 बजे तुम Yes, उसको sir. क्लोज कर देना। कोई जिनकी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई है वो Okay. अटेंडेंस मार्क नहीं करेंगे। Okay, sir. दैट्स ऑल, थैंक यू।